Hello and welcome to Ignited Minds. Today it's 29th of August 2024 and the news articles which are highlighted on your screens will be discussed in this The Hindu newspaper analysis video. As you can see, this statement by our Honorable President talks about the capabilities of women and the woman leadership. Second article is about democracy and third article is about India emerging as a international leader in the diplomatic arena, and we must understand it that how India can broker a peace deal between Russia and Ukraine, and how is India mediating with the USA, Ukraine, and Russia. Further, we will also see an in-depth analysis of tuberculosis being a menace in India. Also, there is a concept of carbon markets which was introduced in this year's budget speech by our finance minister. We will also work on that. We will also see what else is there left in the India Russia relations, because recently, in the past 2 days, there has been meetings going on between India and Russia, and there have been multiple outcomes of these meetings, one of which is a working plan to be dealt with in future. Last but not the least, there are four articles and four of them are related to prelims. You can also expect a question in mains from PMJDY, because this scheme has been one of the most successful case studies for bureaucracy and for us or policy makers to understand that how policies actually work and how policies gain success. There is a short editorial on Chandipur virus, a short article on Nicobar Island project, and a mention of 12 industrial parks. We will discuss all the three in detail and then only we will proceed uh, with prelims and mains aspect of all these things. Before we begin the Hindu newspaper analysis, before we begin the news analysis, I want you to understand that how questions are formed in UPSC, and this question was asked in 2024. ये जो क्वेश्चन 2024 का था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक चीज जो लक्ष्मीकांत से आप कवर कर सकते हो आराम से, या एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है, सेम स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं. अंडरस्टैंड, a bill which is pending in Lok Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha. Is it correct कि लोकसभा ने एक बिल पास किया बट लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो अब उस बिल का कोई फायदा नहीं रहा, बिकॉज जब तक नई लोकसभा आएगी वो पावर में रहेगी, तो लोकसभा का पावर में रहना जरूरी है ताकि ये बिल पास हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन. ठीक है. एक ऐसी बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है, इज पास्ड बाय लोकसभा बट इज पेंडिंग इन राज्यसभा, lapses on the dissolution of Lok Sabha. ठीक है. Next, a bill regard to which the President of India has notified his intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. ठीक है. कि क्या एक ऐसी बिल जिसको दोनों हाउसेज ने पास कर लिया या दोनों में से एक हाउस ने पास नहीं किया, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है दो हाउसेस के बीच में, अब कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सिटिंग का ऐलान कर दिया, क्या ये बिल अब पास अब लैप्स हो सकती है? नहीं, अब ये बिल लैप्स नहीं होगी. क्यों नहीं लैप्स होगी? बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट. ठीक है, ही हैज टेकन द कंसिडरेशन, उस उनका डिसीजन आ गया है कि जॉइंट सिटिंग होगी, तो जॉइंट सिटिंग होके ही रहेगी. ठीक है, इवन दो द लोकसभा गेट्स डिसॉल्व. ठीक है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड वन एंड टू, द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, this is the explanation of the same question. You can go through it. Which are the bills which can get
lapsed, and the conditions where bills do not lapse, ठीक है, are different. Now, understanding this statement of our honorable president, she says that you should not consider women being less capable, and the people who have such mentality and such mindset and consider women being less capable. हमने 2 दिन पहले एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें हमने स्टार्ट किया था दैट इट्स नॉट एक्चुअली द culmination of the gender injustice which we see in terms of rape, in terms of violence, in terms of domestic violence. But what actually is there, which is underlying fact below all of this, because these all crimes are culmination of what? Culmination of an underlying fact, that is stereotypes, that is the slangs, that is the backbiting, or the language which we use in college groups, which we use in the staff groups, the colleagues. वो जो चीज़ें हैं, वो जो हमारी सोसाइटी में डीपली इनग्रेन्ड है, चाहे वो स्कूल में हो, वो फैमिली में हो, वो आपके स्ट्रीट लेवल पे हो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में हो, कि जितने भी मेल्स हैं उनका जो घेटो होता है, दे टॉक अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज टुवर्ड्स वुमन. दीज आर सच इश्यूज, दीज आर सच थिंग्स जिनको धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के एक टाइम पे ये ऐसा आ जाता है कि वी सी द इंसिडेंसेस ऑफ रेप, वायलेंस एंड डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है. सिमिलरली, द स्टेटमेंट by our president, she highlights this thing that this is enough time that we still consider women being less capable, which is not the case. We should not consider them less capable. They are much more capable of what we consider. ठीक है. Because once we do such thing that they are considered less capable or something like that, this thing brings in society the problems that we see today, like rape and violence and domestic violence. And she gives a statement that those who share views, those who share such views, then go further and see females as an object. Okay? Then happens the objectification of females. We owe it to own daughters to remove the hurdles from their path of winning the freedom from the fears. One thing you can do is आप इस statement का note बना लो, because this thing is directly gonna be used in your essay. ठीक है. सोशल जस्टिस का कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे का कोई भी क्वेश्चन हो वुमेन से रिलेटेड, आप ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और इस स्टेटमेंट को यूज करने के बाद आपके ऐसे का वेटेज और मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं. ठीक है. तो इट सेज दैट दोज हु शेयर सच व्यूज व्हेन दे गो फर्दर एंड सी द फीमेल्स एज ऑब्जेक्ट्स, है ना, वी शुड ओ आर सेल्स, वी ओ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनकी उनके रास्ते से हर एक हर्डल को हटाएं और उनको हेल्प करे कि वो अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को हासिल कर पाए. ठीक है. देर आर सम वुमेन लीडर्स who have been in the world, as you can see currently Michelle Obama. ठीक है. You can see Angela Merkel, है ना. There are other women like Mary Wollstonecraft, Kamala Harris. ठीक है. रोजा पार्क्स, सरोजनी नायडू, है ना, रकमा भाई, who stood against the stereotypes, who stood against all the oppression and all the gender injustice, and showed the women of the world that how they can be the leader of their own lives,
हमें उनके प्रिंसिपल्स, उनके बताए गए रास्ते को अडॉप्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और आज की औरतों को आज़ादी लेने का हक वापस देना चाहिए. Let's move to the next editorial in which it is being discussed that how India can broker a ceasefire between Russia and Ukraine, or is India actually in a place, because the editorial says India is not in a place to broker a ceasefire between Russia and Ukraine. आपको क्या लगता है, ऐसा क्या सच में हो सकता है कि इंडिया रशिया और यूक्रेन की हेल्प ऐसे कर दे कि वहां पे सीज फायर हो जाए? बिकॉज रिसेंटली वोट आर प्राइम मिनिस्टर हैज डन इज, वो पहले यूक्रेन चले गए, वहां पे उनने विजिट किया और उनके फोटोज हमने देखे जेलेंस्की के साथ. एंड उसके बाद उनने एक फोन कॉल मिलाया यूएसए और एक मीटिंग की उनने पुतिन के साथ. ठीक है. अब ये चीज ऐसी है कि दैट इंडिया is raising or attempting for peacemaking between Russia Ukraine conflict. See, such opportunities may help India in achieving its goals to be a global leader. ठीक है. और यही कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स है जो हम लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं टू कोट दैट इंडिया कैन बी अ डिप्लोमेटिक लीडर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद हमें और क्या समझना है, दैट जेलेंस्की अगेन, उनने जेलेंस्की के बारे में बात किया था कहाँ पे, ब्रिक्स समिट के टाइम पे, और अभी आगे जो आने वाले समिट्स है तो वहां पे भी वो मिलने वाले हैं. किसके साथ? यूएस के प्रेसिडेंट के, ये प्रेसिडेंट के साथ, यूरोपियन जो लीडर्स हैं उनके साथ मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ शायद जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग होने वाली है आगे आने वाले महीनों में. अक्टूबर में दोबारा से मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की, तो वहां पे भी शायद मीटिंग्स हो जाए. अब बात यह है कि इज इंडिया actually ready for this thing, that it can basically come into picture and start brokering a peace treaty between the two. Earlier we have seen statements from our foreign affairs minister, and the Mr. Jaishankar, he said that it is Europe's war, it's not our war. और हम लोग जो recently, अगर आपसे कोई पूछे कि स्विस पीस समिट क्यों हुई थी, तो वो भी इसीलिए हुई थी ताकि ये पीस टॉक्स हो पाए किन के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में. एंड व्हेन आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्ड इट द यूरोप्स वॉर, इट मींस दैट इंडिया इज टेकिंग अ साइड. इंडिया पीछे हट रहा है इस चीज से, इंडिया को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. बट कंडीशन यहाँ पे ये है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेड अ स्टेटमेंट इन यूक्रेन that India has never been neutral. India has taken sides very well, and India will take sides in this case also. And India wants to have peaceful solution for all of the conflicts which are there in the world. ठीक है. एंड प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे भी बोला दैट इंडिया चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, है ना. कंडीशन ये है कि समझने वाली बात ये है दैट इज एक्चुअली इंडिया in a position, or has India done such act before also? ठीक है. तो समझना ये है दैट दिल्ली हैज सीन, बिकॉज हमने आज तक ये देखा है दैट हमारा रशिया बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है. ठीक है. uh, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तब भी फ्रेंड था अच्छा. अ, हमारी यूएसए के साथ नहीं बन रही थी PL-40 के ऊपर, जब फूड क्राइसिस हुआ तब भी रशिया अच्छा वो हमारा फ्रेंड साबित हुआ. इसीलिए हमारे ह्यूमैनिटेरियन टाइज, मिलिट्री, एनर्जी, ये सारी हिस्टोरिकल टाइज हमारी रशिया के साथ बेटर रही है आज तक. ठीक है. बट जब हम बात करते हैं इसी टाइम पे इन सब चीज़ों की, ठीक है, इंडिया और रशिया के रिलेशंस की, या इंडिया और रशिया की अभी करंट जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनके बारे में, तो इंडिया है थोड़ा सा बायस्ड. सो व्हाट डू यू थिंक, इज एक्चुअली इंडिया इन अ पोजीशन टू डू दिस? बिकॉज रशिया हैज रिसेंटली, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, पुतिन के साथ मीट कर रहे थे, और यूक्रेन के लीडर के साथ मीट कर रहे थे, दोनों टाइम पे दोनों कंट्रीज ने अटैक किया. रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया. अब समझना ये है कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो इज दिस अ कंडीशन जहाँ पे आप ये समझो कि यार, एक तो ये उसी दिन वॉर भी कर रहे हैं जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं बात करने के लिए, तो आपको क्या लगता है उसी दिन अगर वॉर इन्होंने स्टार्ट कर दिया और उसी दिन लड़ रहे हैं जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं पीस की,
डू यू एक्चुअली थिंक दैट दे आर रेडी फॉर द पीस? ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्लू लेना पड़ेगा हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि 1950s में इवन आर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एट द इंस्टांस ऑफ वियना mediated between the Nikita Khrushchev on troops withdrawal from northeastern zone of the Austria post war। तो 1950s में वर्ल्ड वॉर टू के बाद उस टाइम पे व्हेन देयर वाज नैम गोइंग ऑन, ठीक है, तो रशिया और ऑस्ट्रिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उस टाइम पे सोवियत यूनियन, रशिया, अर्लियर सोवियत यूनियन का जो मेन लीडर था निकिता क्रुश्चेव, उनके साथ बात करके रशिया को ये मोटिवेट किया कि आप अपने ट्रूप्स को पीछे हटा लो। अब कंडीशन वही है यहाँ पे। यहाँ पे आज क्या प्रॉब्लम है कि मोदी जी के सामने या हमारी डिप्लोमेटिक एजेंसी, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स के सामने प्रॉब्लम क्या है कि इज रशिया रेडी टू विड्रॉ ऑल इट्स फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड हाउ विल इंडिया कन्विंस यूक्रेन टू नॉट ज्वाइन द नाटो? ठीक है, बिकॉज दे माइट हैव एप्रहेंशंस दैट आज तो हम बच गए, आज तो हमने फिर भी लड़ लिया वापस, बट आगे जाके हमें सिक्योरिटी तो इंश्योर करनी है। आगे जाकर रशिया हमें फिर से हमला करेगा तब क्या करेंगे? तो इसीलिए वो तो नाटो ज्वाइन करेंगे। सो दैट आर द टू थिंग्स जहां पे हमें बात करनी होगी, जहां पे हमें सोचना होगा, जहां पे हमें देखना होगा दैट इज इंडिया एक्चुअली वेल प्लेस टू अंडरस्टैंड एंड ब्रोकर द सीज फायर। कुछ कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स है, जैसे ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, दिस इज द ब्लैक सी ग्रीन डील, जिसके थ्रू यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो सप्लाई होते हैं यूक्रेन से, बाकी सारे एरिया से, यूरोप का जो ट्रेड है वो यहाँ से होता है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो जो सप्लाई चेन था वो डिसरप्ट हो गया था, और सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से बाकी सारे वर्ल्ड के एरियाज में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए थे। तो उसको टैकल करने के लिए ब्लैक सी ग्रीन डील साइन किया गया था। बाकी न्यूक्लियर सेफ्टी, जैपोरिजिया पावर प्लांट जो है, जैपोरिजिया एक ऐसा लोकेशन है जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। ठीक है, जैपोरिजिया कहाँ पे है? और जो रशिया एंड यूक्रेन ने अभी अभी रिसेंटली प्रिजनर्स भी एक्सचेंज किए हैं, है ना? तो ये कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं जो पॉजिटिवली आगे जा रहे हैं, बट द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक इज विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स एंड कीव नॉट ज्वाइनिंग नेटो। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक और आर्टिकल समझना होगा दैट इंडिया एंड रशिया हैज रिसेंटली ज्वाइंट, एंड इन द सेकेंड मीटिंग ऑफ ज्वाइंट रशियन इंडियन कमीशन, रशिया और इंडिया के कमीशन की जो मीटिंग अभी हुई है मॉस्को में, उसमें एक हुआ ये है दैट हमने एक अग्रीमेंट और एक वर्किंग प्लान साइन किया है। ठीक है, ये वर्किंग प्लान किस लिए है? दिस इज फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट्स, कि वर्ल्ड में किसी भी लेवल की इमरजेंसी आए तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे। इंडिया एंड रशिया का जो ये वर्किंग प्लान होगा, ये फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए होगा। एंड ये इमरजेंसी मैनेजमेंट का जो ये प्लान है ये 2025 से लेके 2026 तक के लिए होगा। ठीक है, एंड दोनों कंट्रीज ने ये अग्री किया है दैट दे विल कंटिन्यू टू एक्सचेंज द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बिटवीन द टू। ठीक है, और इसी इमरजेंसी प्लान के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग इज इश्यूज ऑफ स्पेस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज को हम आपस में शेयर करेंगे। क्यों? बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट में ये काम आती है। जैसे सैटेलाइट से हमें पता चलता है कि फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। द कोऑपरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फायर एंड रेस्क्यू स्पेशलिस्ट्स इज ऑल्सो देयर। ठीक है, and lastly, the point is that the leadership of the Prime Minister Narendra Modi and the Home Minister Shri Amit Shah is making the disaster resilient Bharat. And these were some key aspects and some key outcomes of this recent meeting that we have signed this plan for 2025 and 2026. ठीक है,
और इसमें हम क्या करेंगे, यही बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करेंगे, जो लेसन्स रशिया ने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में सीखे हैं या जो हमारी एजेंसीज ने सीखे हैं, उन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। ठीक है। ओवरऑल जो फ्रेमवर्क इस प्लान का रहेगा, दैट विल बी सच दैट सबसे पहले हमने स्पेस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना है और उसको शेयर करना है आपस में, टू अंडरस्टैंड फोरकास्टिंग एंड इमरजेंसी responses, and the sharing or exchange of experience to respond to the large scale disasters, and cooperation in the field of training। ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ फायर एंड रेस्क्यू स्पेशलिस्ट्स। तो हमें ये समझना है कि जो अभी हमने वर्किंग प्लान बनाया है इमरजेंसीज के लिए, ये क्यों बनाया गया है। इसका बेसिक मोटो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये बनाया गया है, और उसी लिए ये हमने अभी ये कल ही मीटिंग हुई है, तो उसी में ये सब चीज़ें सामने आई है हमारे सामने। इसके बाद हमें समझना है नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट दी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही बड़ा मेनस है अगर हम देखें तो इंडिया में, और हमारे हेल्थ केयर को लेके ट्यूबरक्लोसिस का इरेडिकेशन इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि इंडिया इज शेयरिंग अराउंड 1/4 ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ टीबी। ठीक है। इतने सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, बट इस एडिटोरियल में जो चीज़ें डिस्कस की गई है, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट विच इज बीपैल एम। ठीक है, बीपाल या एम। अब ये बीपाल क्या है, ये मैंने इससे पहले भी एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था। बीपाल इज अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अभी जो ये बीपाल ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है, ये एक शॉर्टर रेजिमेंट है। किस लिए? फॉर द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। वो टीबी, वो बैक्टीरिया जिससे ट्यूबरक्लोसिस होता है, बट दैट बैक्टीरिया हैज टर्न टू बी ड्रग रेजिस्टेंट। अब उस पे दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। उस ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट को ठीक करने के लिए एक नया तरीके का यू कैन से इलाज है। ठीक है, एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है बी पैल। ठीक है। अब इसमें करते क्या है, ये एक शॉर्टर रेजिमेंट है। शॉर्टर रेजिमेंट मतलब आपको कम टाइम के लिए दवा खाना है, कम दवाइयाँ खानी है, और इसका सक्सेस रेट ज्यादा है। ठीक है। जैसे जो अभी इलाज चलता है टीबी के पेशेंट्स का, उनको दिन में 13 से 14 गोलियां खानी पड़ती है, और हर दिन खानी पड़ती है, और कंटिन्यूअसली कम से कम 2 साल तक खानी पड़ती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। या तो कम से कम अगर बहुत ही कम टाइम के लिए खाना है, तब भी 11 महीने के लिए तो खाना ही खाना है। ठीक है। और उसके बाद फिर 11 महीने के बाद 4 से 5 टैबलेट कंटिन्यू करनी है 2 साल तक के लिए, तब जाके ये पेशेंट जो है ठीक हो सकता है शायद। क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है दैट वो बैक्टीरिया मर नहीं रहा है। ठीक है, कितनी भी दवाइयां खा लो आप। अब यहीं पे बात आती है बीपैल एम की। बीपैल एम क्या है? बीपैल एम इज अ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, टीबी इरेडिकेशन ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, उसको बस 2 से 3, 3 या 4 गोलियां उसको हर दिन खानी पड़ती है। बस 3 से 4 गोलियां खाने के बाद उसको ये ट्रीटमेंट बस 6 महीने के लिए करना है। 6 महीने का ट्रीटमेंट करेगा तो 89% ऑफ चांसेस आर देयर कि वो जो पेशेंट है ठीक हो जाएगा। क्लियर कट बात है यहाँ तक। एंड अगर हम इस बीपैल के ट्रीटमेंट के थ्रू जाएंगे, तो हमारी जो सेविंग्स है, दैट विल बी अराउंड 90%, 40 to 90% ऑफ द कॉस्ट विल बी सेव्ड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बीपैल जो ट्रीटमेंट है, एक तो कम टाइम के लिए खानी है दवाइयाँ, कम दवाइयाँ खानी है, सक्सेस रेट ज्यादा है, और ये दवाइयाँ भी चीपर हैं। दीज आर द फीचर्स विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर प्रीलिम्स। ठीक है, कि बीपैल क्या है और बीपैल के फीचर्स क्या है, पूरा ऐसे ही याद करना है इसको। ठीक, क्लियर कट यहाँ तक कहानी। इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है द नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे 2019-21 की। इस सर्वे में ये बोला गया दैट द चेस्ट एक्सरेज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चेस्ट एक्सरे करने के बाद ही डिटेक्ट होता है दैट 42.6% ऑफ द केसेस दैट वुड हैव अदरवाइज बीन मिस्ड। ठीक है, कि आपको ये समझ नहीं आता, क्योंकि टीबी कहाँ होता है, आपके लंग्स में ही होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होता है, बट
अगर हर पेशेंट का चेस्ट एक्सरे लिया जाए तो तुरंत ये डिटेक्शन हो जाएगा कि टीबी का पेशेंट है या नहीं। और ये सर्वे ने ये बताया कि अगर ये एक्सरे ना लिया गया होता तो 42% ऑफ केसेस तो हमें पता भी नहीं चलते कि ऐसे थे। ठीक है। एंड देर इज अ क्रिटिकल नीड टू एक्सपैंड द रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट ऑल्सो। ठीक है। और हमें अ, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें और ज़्यादा डिटेक्शन हो जाए इस बीमारी का। जितना हम ज़्यादा जल्दी इसको डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हम इसको ट्रीट भी कर पाएंगे और इरेडिकेट कर पाएंगे। ठीक है। टीबी एक बैक्टीरिया से होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आपको वेट लॉस होने लगता है, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, हाई टेम्परेचर रहता है बॉडी का, और बॉडी में हमेशा फटीग एंड टाइटनेस रहता है। आपको भूख नहीं लगती है। टीबी के दो टाइप्स हैं। वन इज द पल्मोनरी टीबी एंड अनदर इज द लेटेंट टीबी। ठीक है। पल्मोनरी टीबी इज दैट विच अफेक्ट्स द लंग्स। द पल्मोनरी टीबी इज बेसिकली मोस्ट कंटेजियस टाइप ऑफ टीबी। ठीक है। बट इट यूजुअली only spreads after a prolonged exposure to someone with the illness। कि अगर कोई इंसान, ठीक है, पेशेंट है टीबी का, और उसके साथ आप कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में हो तब जाके ये शायद आप पे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। यूजुअली एक हेल्दी बॉडी को अगर टीबी हो भी जाता है तो उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम का इतना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो टैकल कर ले। ठीक है। डन। हावेवर द लेटेंट टीबी विच इज मोर डेंजरस इन फॉर्म, ठीक है, जिसके सिम्टम्स आपको बहुत देर के बाद पता चलते हैं। ठीक है। द लेटेंट टीबी समटाइम्स इम्यून सिस्टम कैन नॉट किल दिस बैक्टीरिया ओनली। ठीक है। और उससे होता क्या है कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रह जाता है। डन। आपको सिम्टम्स भी नहीं पता चलते, बट वो जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में है और वो ग्रो करता जा रहा है। ठीक है। एंड ये जो लेटेंट टीबी के पेशेंट्स हैं ये दूसरे पेशेंट को इफेक्ट नहीं करते, इनसे दूसरे पेशेंट को ये स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है। अब यही सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमें टेस्ट्स कराने ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज लेटेंट टीबी का तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं है। अब टीबी का ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है। टीबी का ट्रीटमेंट सिंपल है। आपको 6 से 18 महीने तक की एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है कंटिन्यूअसली। 18 महीने तक की मिनिमम एंटीबायोटिक्स खानी है एवरेज में। ये एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी आप ठीक हो जाओ, देर आर चांसेस, बट देर आर वेरी मच चांसेस कि आप जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हो आपके अंदर जो टीबी का बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ खाने के बाद भी वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ठीक है। इसीलिए नए नए मेथड्स आ रहे हैं टीबी को खत्म करने के लिए, जिसमें BPAL-M एक और नया मेथड है। डन। This editorial is very much important to be understood well by all of us, and for this I must go to the newspaper itself. ठीक है। Just a moment. I have to go to the newspaper itself because otherwise ये समझ में नहीं आएगा, because this is a bit important. ठीक है। ये आपका न्यूज़पेपर आ गया, और न्यूज़पेपर में हम जो एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं ये ओपिनियन सेक्शन का एडिटोरियल है। और ये जो एडिटोरियल है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बिकॉज बेसिकली आर होम मिनिस्टर, दिस finance minister, she announced this carbon market in her budget speech. So what are carbon markets and how they work? Let's understand the carbon market mechanism. ठीक है। कार्बन मार्केट किस लिए है? ताकि कार्बन के एमिशंस को टैकल किया जाए। ठीक है। अब टैकल करना है, ठीक है, कम करना, ज्यादा करना वो अलग बात है, बट जो ऑलरेडी कार्बन एमिशन हो रहा है उस कार्बन एमिशन पे काम करना। अब ये काम कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इट इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है। वो कितना प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा वो एमिट कर रही है कार्बन।
फॉर एग्जाम्पल एक प्लास्टिक बॉटल बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, अगर वो प्लास्टिक रिसाइकल भी नहीं कर रही है और उसके बाद वो प्लास्टिक बनाने के टाइम पे कोल का यूज कर रही है, ठीक है, डायरेक्ट प्लास्टिक का मोल्ड बनाने के लिए वो कोल का यूज कर रही है, तो वो दो तीन चीजें कर रही है। एक तो वो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है जिसको डिग्रेड करने में बहुत टाइम लग जाएगा अर्थ को। उसके साथ साथ वो ये भी कर रही है कि वो कोल का इस्तेमाल कर रही है, वो उस फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रही है जिससे कार्बन और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, और ऊपर से वो रिसाइकल भी नहीं कर रही है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये है कि इस चीज को हैंडल करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ मार्केट, जिसमें क्या होगा कि एक इंडस्ट्री जो ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है, ठीक है, वो ये ज्यादा एमिशन कम कर दे, बट उससे होगा क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अब इकोनॉमी को बचाने के लिए हमने क्या बोला कि जितना आपका एक्स्ट्रा एमिशन है आप किसी और कंपनी से बात करो, ठीक है, एक कंपनी ए है, फॉर एग्जांपल इसकी लिमिट है कि 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये इमिट कर सकती है, बट ये 200 टन्स कर रही है। और यहाँ पे एक और इंडस्ट्री है, एक और फैक्ट्री है जिसकी लिमिट, बी फैक्ट्री है जिसकी लिमिट सेम है 100 टन्स, बट ये यूज ही नहीं कर रही है, ये फैक्ट्री अभी बंद पड़ी है बहुत टाइम से, ठीक है। या इस फैक्ट्री ने क्या कर दिया, इसने अपने आप को ग्रीन कन्वर्ट कर दिया, इसने इन्वेस्टमेंट लाके अपने आप को ग्रीन कन्वर्ट कर दिया, ये बोल रही है मैं तो एमिट करूंगी ही नहीं। बट ये फैक्ट्री जितना इसने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, उस चीज को हमें इंसेंटिवाइज करना है कि इसने टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन किया, इसने अपनी फैक्ट्री को कोल मुक्त कर दिया, कोल हटा के इसने इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया, या ये सोलर एनर्जी यूज कर रहा है डायरेक्ट पावर जनरेशन के लिए, और ये रिसाइकल पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो इसका एमिशन जीरो हो गया। बट इसके पास लिमिट थी, इसके पास कोटा था कि ये 100 टन एमिट कर सकता था। तो ये बी जो है ए को बोलेगा कि देखो मेरा तो खर्चा बहुत हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में सोलर पावर प्लांट लगाने में, बाकी सारी चीजें करने में, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारी ये 100 यूनिट एक्स्ट्रा है या 100 टन एक्स्ट्रा है वो तुम मुझे बेच दो। जो मैंने 100 यूनिट्स का सर्टिफिकेट हासिल किया है कि मैं 100 यूनिट्स बचा रहा हूँ अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के, वो सर्टिफिकेट मैं तुमको दे दूंगा, तुम मुझे इसके बदले पैसे दे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया है, तुम पैसा दोगे तो मेरा कुछ खर्चा चल जाएगा। दैट इज सिंपल कार्बन मार्केट, ठीक है। जो चीज़ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है वो तुम मुझे दे दो, तो मतलब तुम्हारे पास पैसे है तो मुझे पैसे दो, और जो चीज़ मेरे पास है, मेरे पास ये है कि मेरे पास ग्रीन एनर्जी है, मेरे पास कार्बन के क्रेडिट्स है कि मैंने कार्बन एमिट नहीं किया है मार्केट में, तो वो मैं तुमको दे दूंगा। दिस इज सिंपल फंडा ऑफ कार्बन मार्केट्स। अब ये कार्बन मार्केट्स का जो फंडा है ये इमर्ज कहाँ से हुआ और अभी क्या चल रहा है? अभी इन द बजट स्पीच, ठीक है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला दैट देयर शुड बी अ रोड मैप जिसकी हेल्प से हम ये काम करें कि जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी वो एनर्जी एफिशिएंसी लेके आए, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, वो अपने एमिशंस के टारगेट्स को कम करें। अंडरस्टूड? क्लियर? और ये कैसे होगा? ये होगा जो अभी करंटली चल रहा है काम, दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। दैट इज आप परफॉर्म करो कि आप अपने कार्बन एमिशन को कम करो, एंड यू अचीव अ सर्टिफिकेट, एंड देन यू ट्रेड अ सर्टिफिकेट, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को आप ट्रेड करो और उसके बदले आप मार्केट से पैसा उठा लो, ठीक है। दैट इज इंडियन कार्बन मार्केट। एंड व्हाट शी सेड इज दैट वी वांट दिस मार्केट टू बी डेवलप्ड सून, ठीक है। बट अभी समझना ये है दैट दिस परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड मॉडल हैज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसके लिए हम इमिशन ट्रेडिंग करें या ये मॉडल अडॉप्ट करें? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो हमारा है इट डिफाइंस पीएटी, कि पीएटी क्या काम करेगा। पीएटी इज अ रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम एनर्जी कंजप्शन कम करेंगे किन इंडस्ट्रीज में जहां पे एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, और इसके साथ साथ हम एक ऐसा मार्केट डेवलप करेंगे which will be based on the mechanism to enhance the cost effectiveness through the certification of excess energy savings which will be traded। वही, जितना एनर्जी इनने सेव कर लिया उतना एनर्जी ये ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। फर्दर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एब्सोल्यूट एनर्जी यूज्ड। रिमेंबर दिस थिंग, पैट के अंदर या कार्बन मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो,
ठीक है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एनर्जी यूज कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है। However, we need to meet these standards and then generate credits, certificates, और वो जो सक्सेसफुल फर्म्स होंगी जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगी, वो इन सर्टिफिकेट्स को फिर ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। दैट इज एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, एमिशन ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एमिशन ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज द कैप एंड ट्रेड मॉडल, ठीक है। इसमें करते क्या है? सिमिलर मार्केट बेस्ड अप्रोच है। ऊपर हमने देखा परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, दैट इज फॉर एनर्जी सेक्टर। क्या आप एनर्जी कम खर्च करो, एनर्जी कम खर्च करने का सर्टिफिकेट लो, और देन आप एनर्जी एफिशिएंट बनाओगे अपने आप को। जैसे मैंने बोला, इसने सोलर एनर्जी अडॉप्ट की, ठीक है, अपने आप को एनर्जी एफिशिएंट बनाया, तो देन यू कैन ट्रेड इट। और उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म है हमारे पास, वो है एमिशन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म। एमिशन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इट इज नोन एज कैप एंड ट्रेड मॉडल। कैप एंड ट्रेड मॉडल कैसे काम करता है? इट्स अ मार्केट बेस्ड अप्रोच, ठीक है। आप क्या करते हो? आप अपने एमिशंस को कैप करते हो, ठीक है, कि मैं इतने एमिशंस कम करूंगा, मैं इतना पोल्यूशन कम करूंगा। जितना आपका पोल्यूशन कम होता जाएगा, उतने आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, और उतनी ही आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगी कि आपने इतने यूनिट्स कम पोल्यूट किए, इतना आपसे की इंडस्ट्री से कम पोल्यूशन निकला, इतना आपने कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कम किया, ठीक है। और जितना वो कम हो जाएगा, उतनी ही आपको उसी इक्विवेलेंट में, बेसिकली 1 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है। और उतने क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, और उतने क्रेडिट्स को आप ट्रेड कर पाओगे। अंडरस्टूड यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट व्हाट ही टॉक्स अबाउट इज दैट इन द पास्ट 15 years इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू डीकार्बनाइज इट्स सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स लाइक व्हीकल्स को ई व्हीकल्स बना दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, इलेक्ट्रिक पंप्स को सोलर पंप्स यूज़ कर दिया, बना दिया, और सोलराइजेशन कर दिया पंप्स का। उसके साथ साथ अब रूफटॉप सोलर प्लांट्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड दिस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या सीडीएम कब आया था? ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आया था, ठीक है। इट इज वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल्स फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज होती है, दे विल टेक सम क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स इन अदर कंट्रीज। सीडीएम में क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में कोई इंडस्ट्री है, या कोई इंडस्ट्री अमेरिकन इंडस्ट्री है, और वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल, वो एक लैंड माइन को अडॉप्ट कर लेगी, और उस लैंड माइन को सस्टेनेबली वेस्ट रिक्लेमेशन करके उस वेस्ट को खत्म कर देगी, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स फॉर क्लीन डेवलपमेंट, ठीक, अंडरस्टूड। या क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया, और ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, बाय 2011 इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस यूनिट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब बात ये हुई कि इंडिया में इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्लांट्स लग गए जो ये एमिशन को कम कर रहे थे, ठीक है, कि इंडिया में जो ये सर्टिफिकेट्स थी एमिशन रिडक्शन की, वो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। और इसी को लेके इंडिया हैज आल्सो परस्यूड टू गो फॉर अ नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये जो ये मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसमें एक कंपोनेंट है, which is this national mission for enhanced energy efficiency is one of the 8 missions जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इंडिया का है, जो हमने 2012 में लॉन्च किया था। उसके अंदर एक कंपोनेंट उसका ये भी है, ठीक है, कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी लेके आनी है, और वो हमने बखूबी लेके आए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उस पर और भी काम हो रहा है। एंड नाउ व्हाट इंडिया नीड्स इज कि इसका जो आयरन एंड स्टील सेक्टर है, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। बिकॉज वी हैव मैसिव हाउसिंग डिमांड इन अर्बन सेंटर्स, एंड emissions फ्रॉम द आयरन एंड स्टील आर बिग कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमें एक तो इस सेक्टर को भी डेवलप करना है, और दूसरा हमारी नीड भी है, तीसरा ये सेक्टर बहुत ज्यादा इमिशन भी कर रहा है। तो अब हम इसका करें क्या, जबकि हमारे सामने 2050 का 2070 का नेट जीरो का टारगेट भी है, ठीक है। नेट जीरो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी रखा हुआ है अपना 2050 का। तो व्हाट इंडिया कैन डू इन दिस कार्बन मार्केट मोड? तो इन द इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स,
ठीक है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल ये भी है कि इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट के बाद नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब ये एनडीसीज क्या है और पेरिस क्लाइमेट के बाद ये क्यों, पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये क्यों हमने डिक्लेयर करे, और रिसेंटली हमने 3 एनडीसीज को रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, और ये एनडीसीज क्या होते हैं ये भी समझने की बात है। एनडीसीज आर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हम नेशनल लेवल पे ये टारगेट बना लेते हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। अब क्या कंट्रीब्यूट करेंगे हम? फॉर एग्जांपल हमारा एक टारगेट है कि हम 45% या 50% जो हमारा एनर्जी है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, जो हमारा 45% ऑफ द एनर्जी डिमांड्स है, ये हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, वी विल मीट इट विद नॉन फॉसिल फ्यूल्स। हमारा एक टारगेट है दैट वी विल अचीव नेट जीरो emissions by 2070। दीज आर दी एनडीसीज। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको। और नेक्स्ट इज हाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है। जैसे हमारा एक टारगेट ये भी है कि हमें रिड्यूस करना है एमिशन इंटेंसिटी को टू द 45% ऑफ द जीडीपी बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030। वैसे ही हमारा सेकंड टारगेट है एनडीसीज के अंदर कि 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए 2030 से पहले पहले। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है इस कार्बन मार्केट को लेके। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस कार्बन मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एडिटोरियल एंड दिस पीएमजेडीवाई। ठीक है, पीएमजेडीवाई को 10 साल हो गए हैं एक्चुअल में। समझना ये है कि पीएमजेडीवाई का कंप्लीशन 10 साल का कितना ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पे एक नंबर है दैट 53 करोड़ पीपल हैव ओपनड द बैंक अकाउंट्स नाउ। दिस वाज द हाइट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो जो ये पीएमजेडीवाई है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पीएमजेडीवाई एक्चुअल में क्या काम करती है। ये एक बैंक अकाउंट, हर एक इंसान के पास एक बैंक अकाउंट हो, इस पे काम कर रही थी। ठीक है, आई गेस 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और 2024 आज हो गया है, 10 साल इसको हो गए हैं। ये क्या काम करती है, हर एक इंसान के पास बैंक अकाउंट हो, और ये बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास बैंक होने चाहिए, बट बैंक हर एक जगह पे नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि ये जो बैंक है, बैंक के साथ होगा एक बैंक कॉरस्पॉन्डेंट। ठीक है, और वो बैंक कॉरस्पॉन्डेंट जाएगा हर एक इंसान के पास, विलेज टू विलेज, और ये बैंक अकाउंट खोल के देगा। वंस दिस बैंक अकाउंट इज ओपनड, देन इस बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अब वो पैसा कैसे आएगा? या तो आप अपना पैसा डालोगे, ठीक है, आपकी सेविंग्स होंगी, वो पैसा बैंक के अंदर जाएगा। जो ही पैसा बैंक के अंदर जाता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, नॉर्मल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। अगर याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा क्या है। ठीक है, सेविंग्स होंगी। और दूसरा यहाँ पे एक और रूट अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने, डीबीटी वाला रूट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कि गवर्नमेंट को कोई भी पैसा अगर आपको देना है, चाहे वो सब्सिडी है, चाहे वो अलाउंस है, चाहे वो सैलरी है, या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, चाहे वो एड है, वो ग्रांट है, वो कुछ भी है, वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो कल को, ठीक है, वो फार्मर्स के लिए हो 2000 रुपये every month, everything will be directly transferred into this account। ठीक है, और अगर ये होता है तो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करेगा, और मनी मल्टीप्लायर के थ्रू जो मनी का मल्टीप्लिकेशन होगा उससे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, और फास्टर ग्रोथ अचीव होगी। ठीक है, तो इस स्कीम के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अंडरस्टैंड ये करना था कि एक्चुअल में ब्रॉडर स्कीम किस चीज़ पे काम कर रही है, दिस इज द मेन आस्पेक्ट। बट अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स एस्पेक्ट ऑफ इट। सबसे पहले ये आपको एक डेबिट कार्ड देते हैं, विच इज अ रुपे कार्ड। ठीक है, एंड देर आर नो रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, सो नो
minimum balance is required, and then there is accident cover of 1 lakh rupees. ठीक है, and there is an overdraft facility of 10,000 रुपीज। ठीक है, और इसके साथ साथ पीएमजेडीवाई के जितने भी अकाउंट्स होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ठीक है, इन सब स्कीम्स के लिए ये अकाउंट्स डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट दी निकोबार प्रोजेक्ट। ठीक है, व्हाट इज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एंड व्हाई इज इट बीइंग क्रिटिसाइज्ड बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक्चुअल में, ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द निकोबार ग्रुप आइलैंड्स। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ही आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा, एंड दिस इंदिरा पॉइंट इज द इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट विच इज लोकेटेड 90 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम सबांग। ठीक है, तो ऊपर हमारा इंदिरा पॉइंट है, नीचे सबांग है। विच इज अ टेरिटरी ऑफ इंडोनेशिया। ठीक, क्लियर यहाँ तक। सुमात्रा का ये पार्ट है इंडोनेशियन आर्किपेलागो का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टोटल 836 आइलैंड्स है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार जो है हैज 2 नेशनल पार्क्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क्स है। पहली जो नेशनल पार्क है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 2 नेशनल पार्क्स है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ट्राइब्स है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे शोम्पेन, ओंग, अंडमानीज एंड निकोबारीज। ठीक है, 4 ट्राइबल ग्रुप्स है यहाँ पे, एंड देर आर फ्यू थाउजेंड नॉन ट्राइबल सेटलर्स ऑल्सो इन दिस आइलैंड। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब ये ग्रेट निकोबार या निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या काम करेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट असल में गवर्नमेंट 2021 में लेके आई थी, एंड दिस प्रोजेक्ट इज अ 72,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज बनानी है एक ट्रांस शिपमेंट पोर्ट। ठीक है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, एक टाउनशिप एंड एक 450 मेगावाट गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, ये सब चीजें बनानी है हमें कहाँ, इसी आइलैंड के ऊपर। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रिपोर्ट दी थी नीति आयोग ने। ठीक है, और नीति आयोग ने बोला दैट देयर इज पोटेंशियल, और ये जो आइलैंड है हमारा, इसका एडवांटेज है हमें कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस आइलैंड इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, दोनों जगह से सेम डिस्टेंस है इसकी। कहां से, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कोलंबो जो श्रीलंका का है। ठीक है, एंड पोर्ट क्लांग। ठीक है, पोर्ट क्लांग कहाँ का है, मलेशिया का। ठीक है, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सिंगापुर ऑल्सो। तो आप सोचो एक ऐसा पोर्ट जो सेंटर में है। ठीक है, वहां से आप कोलंबो भी जा सकते हो, आप मलेशिया भी जा सकते हो, और आप सिंगापुर भी जा सकते हो। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और इक्वी डिस्टेंस है, हर एक जगह के लिए सेम डिस्टेंस है। तो ये पोर्ट कितना अच्छा एक वेन्यू बन सकता है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो दिस इज द आइलैंड प्रोजेक्ट, और इसके कुछ और फीचर्स है, लाइक
यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक कॉरपोरेशन बनाई गई है, जिसके अंदर सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इज दिस ट्रांसशिपमेंट और इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, उसी के साथ साथ इट इज वेरी मच क्लोज टू मलाका स्ट्रेट ऑल्सो। ठीक है, विच विल हेल्प अस इन द कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडियन ओशियन टू पैसिफिक ओशियन। ठीक है, द साइट फॉर द प्रपोज्ड दिस आईसीटीटी एंड द पावर प्लांट, ठीक है, is the Galathea Bay on the southern southeastern corner of the Great निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो गलातिया बे के ऊपर ये बन रहा है ये आईसीटीटी। ठीक है, अब समझना यहाँ पे ये है दैट इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होने के बाद यहाँ पे एक एंगल आ रहा है, वो है एनवायरनमेंट का एंगल। और जो मैंने यहाँ पे बोला कि ये एनवायरमेंटली बायोडाइवर्स रीजन है, यहाँ के ट्राइब्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो अभी तक नहीं बाहर आए हैं और अभी तक सोशलाइज नहीं हुए हैं पूरे वर्ल्ड से। इसके साथ साथ यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है, कुछ नेशनल पार्क्स भी है, और ये लार्जर हॉटस्पॉट के अंदर भी आता है, जो सुमात्रा और ये इंडोनेशिया वाला हॉटस्पॉट है साउथ ईस्टर्न, उसके अंदर भी आता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है, और इसीलिए यहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो क्वेश्चन रेज कर रही है अबाउट द एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, लास्टली वी हैव दिस चांदीपुर वायरस। चांदीपुर वायरस बेसिकली अभी इसको डब्ल्यूएचओ ने कंसिडर किया है कि आज का जो इन्फेक्शन है, अभी जो ये फैल रहा है, ठीक है, तो जो करंट स्प्रेड है इसका, इट इज द लार्जेस्ट इन 20 years इन इंडिया। ठीक है, तो अभी ये की कंसर्न बन गया है। ठीक है, हावेवर हमें समझना ये है कि ये चांदीपुर वायरस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चांदीपुर वायरस इज एक्चुअली अ आर्बो वायरस दैट बिलोंग्स टू रैप्डोविराइडे फैमिली। ठीक है, चांदीपुर वायरस को ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए सैंड फ्लाइज होती है। सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है, वो एक, नॉट हाउस फ्लाई, मक्खी जैसी होती है सैंड फ्लाई भी। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह वेक्टर बन के इसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, दैट इज द मेन ट्रांसमिटिंग एजेंट और वेक्टर फॉर दिस। इसके साथ साथ मस्कीटोज, कौन से मस्कीटो, जो वही डेंगू वगैरह फैलाता है मस्कीटो, वही एडिस इजिप्टी मस्कीटो, वो इसका मेन वेक्टर है। ये जो वायरस है चांदीपुर वायरस, यहाँ पे ये याद रखना है, ये 15 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को चांदीपुर वायरस लग जाए तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज, ये वायरस आपके स्लेवरी ग्लैंड्स में चिपक जाता है। ठीक है, तो आपका गला खुश्क होने लगता है। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट डालता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करने के बाद देन इट पोटेंशियली लीड्स टू एंसेफेलाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। और उसके बाद जो ब्रेन है वो इन्फ्लेमेट होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है ब्रेन की, और उसके बाद सीजर आते हैं, मेंटल अटैक्स आते हैं, एंसेफेलाइटिस होता है और ब्रेन हेमोरेज हो जाता है, और देन इट कैन ऑल्सो कॉज टू डेथ। ठीक है, देर इज नो स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट टू द दिस चांदीपुर वायरस, और अभी तक हमारे पास वैक्सीन भी नहीं है। ठीक है, तो देर इज नो ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन विच इज प्रेजेंट। ठीक है, हावेवर इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1965। पहली बीमारी नहीं है ये, 1965 में पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और कहाँ सबसे पहले मिला था ये, हमें महाराष्ट्र में मिला था। महाराष्ट्र के एक गांव जिसका नाम ही ये चांदीपुर विलेज, यहाँ पे हमें पेशेंट 0 मिला था इसका। ठीक है, सबसे पहला केस। नेक्स्ट वी हैव 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स, जो अभी यूनियन बजट में अनाउंस किए गए थे, एंड कैबिनेट कमिटी ने अभी अप्रूव कर दिया है इसको। इट हैज क्लियर द 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स, जो 10 स्टेट्स में बनने वाली है। ठीक है, 2024-25 के बजट में ये प्रपोज किया गया था कि हम ऐसी 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ बनाने वाले हैं? द गवर्नमेंट सेड कि ये जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज हम बना रहे थे, दे हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने ग्रीन सिटी बना दी,
स्मार्ट सिटी बना दी। अब वहां पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग वहीं रहेंगे और वहां इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो सिटी में कनेक्टिविटी अच्छा है, रहने के लिए अच्छी है वो सिटी, लोग वहां रहना पसंद करेंगे, और वहीं पे इंडस्ट्री भी लग जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। विच विल क्रिएट अ पोटेंशियल ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स। ठीक है। तो इसीलिए हमें ये इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करना है। अब इंडस्ट्रियल पार्क्स कहाँ कहाँ बनेगी? पहली बनेगी आंध्र प्रदेश में, दूसरी बनेगी दो बनेगी आंध्र प्रदेश में, दो बनेगी यूपी में। ठीक है। दो दो चार हो गई। एक गया में बनेगी, पांच हो गई, और एक दिघी महाराष्ट्र में बन जाएगी। ठीक है। और महाराष्ट्र में एक और बनने वाली है, मतलब दो महाराष्ट्र में, दो उत्तर प्रदेश में, दो आंध्र प्रदेश में, एक गया बिहार में, और एक मुंबई दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस पे कुछ और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने वाली है। ठीक है। इसके साथ साथ वाइजग, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है इन पे भी ऐसी पार्क्स बनने वाली है। ठीक है। करेंगे क्या? सबसे पहला काम करेंगे, वी विल डेवलप 100 इन्वेस्टमेंट रेडी plug and play industrial parks. What are these plug and play industrial parks? Which have complete infrastructure in or near cities in the partnership. गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? गवर्नमेंट एक ऐसा हब बनाना चाहती है, एक ऐसी प्लेस बनाना चाहती है जहां पे एक बंदा आए और वो अपनी इंडस्ट्री लगाए। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए उसको क्या चाहिए? पहले उसको रोड चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, उसको हॉस्पिटल चाहिए नियर बाय, उसको हाउसिंग रेजिडेंशियल सोसाइटी चाहिए, उसको पार्किंग एरिया चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उसको चाहिए कि उसको रॉ मटेरियल की सप्लाई हो। तो ये सब चीज़ें इनको अवेल कराई जाएंगी इस पार्क के अंदर। अब ये एरिया होगा जिसको डिक्लेयर कर दिया एज एन इंडस्ट्रियल पार्क, इस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर हर एक चीज अवेलेबल होगी, बस एक चीज नहीं होगी, वो है इंडस्ट्री। वो एक इन्वेस्टर आके लगा देगा, बस दैट्स इट। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है। और बजट 2024-25 ने बोला दैट 12 ऐसी हम सिटीज बनाएंगे, 100 सिटीज टोटल में हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेडी कर देंगे विद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल पार्क एक इकोनॉमिक जोन होगा। ठीक है। विच विल बी अ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल दिस सिटी है और इंडस्ट्रियल सिटी इंडस्ट्रियल पार्क है, उसका नाम है श्री सिटी इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है। और श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। मैंने बोला 1 मिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पोटेंशियल है इनका। 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकती है। ये मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट नहीं है, आप इसको कोट कर सकते हो। ठीक, डन। यहाँ तक हो गया आपका इंडस्ट्रियल पार्क्स। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर, हैव अ नाइस डे अहेड।